दिल का सिकंदर जाने मन तलाएगा ना 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 आजा चल चल ओ 잠잠 내려 그러면 지금 가야만 되셔 봐. 왜 가요? 그래. 왜 가요? 그래. 라라라라라라라. अच्छा तो खोल है क्या दे 4 खेत हाँ हाँ मैं समझ selling with the seminar chire onte angzo ge re angzo tar de tenzi sundu la ge ni ti sunshe chi ra ta de ta galer da 귀여워. 네, tenzi pai kada mambo khame 야소 Smile. Okay, smile and see ya. 1, 2, 3. Yeah, one more. Thank you. One more. Yeah, see here. 1, 2, 3. आजा प्रतीक्षा बैठ जा Indu. आजा Hello. बैठ जा Indu. ओके
आप थोड़ा अंदर आएंगे. Hindu. Okay. Look here. Okay. Yeah. Free Tibet. Okay. Tibet. Okay, nice. One more. Yeah, okay. One minute, Yeah. who's coming? Okay. Hubby is coming. Yeah, Come, Hindu just, out. just say 1, 2, 3 outside. Let me Okay, wait. 1, 2, 3. Free Tibet! Big yellow! One more. You don't get one more. One more. Can you sit here? Yes. Yeah. One. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Free Tibet! Free Tibet! Big yellow! 배절로 Big yellow! Big yellow! 어디 가시? Thank you. 사진 김양호다. 땡큐지. Lovely. My daughter-in-law. 네, çıkıcı. Kamca, tecrübem. नमस्कार. नमस्ते बेटा. ये क्या हाल है? एक सोल्डर है. One, Take that. Yeah. Okay. Yeah. Thank you. मुझे बारी डांस शो छी आपके हाँ प्रोग्राम है हाँ शादियाँ हुई हैं. चलो नाइस अभी तो सुनेंगे चाय वाय 그때 내 세미나 사자대로 사자 뺏김냐고도 스밍풀 축에서 ये लोकल है. अल्ले और रे. 커버 진다 이거. 된다. 됐어요. 된다. 숨. 배절로. How do you do?
Ladies and gents group. All the ladies together. अब ladies gents group करना. Sure, तो दूसरा देखो, तो दूसरा देखो, तो दूसरा आप भी जाइए, आप भी जाइए। मैं टेंसिंग को भेज दूंगा, वो आपको भेज देगा। I'll send you the photo. अच्छा, उससे क्लिक करना है? कहाँ से? अच्छा, इससे इसमें क्लिक कर दीजिए। लॉक कर दे। इज इट लॉक? नो। अच्छा, इससे क्लिक करना है। मेरे को लगा इससे इसमें कनेक्टेड है। ओके ऐसे ओके, 1 2 3 स्माइल। ओके, 1 2 3। आई थॉट यू हैड टू। मैं कहा वो रिमोट कंट्रोल। ये तो 야, 데스야, 당수루야. 야, 데스야, 아니. Thank you. जिम्बा। Thank you. 야, 나 배 잘라 인다. But they're coming to Tenzin. Which is the first station, so come. Up at you somewhere. Come in the first row. They come specially for this. Come. Come in the first row. Second come और आगे. आ जाइए. Yeah, sure. Yeah. Come, please come in front. सामने आइए. लीला आगे बैठा काम तो सभी हो रहा है अभी और उधर भी आएगा उधर बैठिए थोड़ा सुनते हाँ आगे बैठे Creative journey through ideas, life lessons, and art. Today you'll hear from poets and policymakers, dancers and diplomats, foodies and futurists, each conversation designed to spark curiosity, ignite conversation, and leave you with stories to carry home. Before we begin, we'll pause to honor our venue and hospitality partner, Mountain Magic. Your generosity makes these moments possible for all of us. I also want to thank some creative contributors, Nidhi Shah, who designed the Nainital Literature Festival logo, Digvijay Singh for his beautiful Malital Bazaar paintings featured in our festival creatives, and Hamamatul Bushra for her beautiful artworks that are showcased across our festival creatives.
So as we begin our first session, I'd like to say a couple lines in honor of Tenzin Sundu. Borders may be lines on a map, but exile is etched on the soul. Let's begin with a voice that has crossed mountains, borders, and silence of exile. A successful writer with a voice that has also traveled the globe. Please welcome poet, activist, and eternal rebel, Tenzin, as he shares Nowhere to Call Home. Tenzin's work guides us through landscapes of longing, so let's travel with him. सो कॉल्ड चाइना मैं 5-6 दफे गया और मुझे वहां से बहुत प्यार है। मैं 90 में डॉक्टर शेखर पाठक के संग कैलाश मानसरोवर गया हमारे रूट से। तब 5-6 दिन की ट्रैकिंग होती थी और उसी दौरान मैंने ओम पर्वत का फोटो खींचा जो कि काफी फेमस हो गया। और उसके अलावा 2022 में मैं गया। फॉर्चुनेटली दोनों समय हॉर्स ईयर था, घोड़ा वर्ष था, तो तिब्बतन्स ने बताया कि ये आपकी जो परिक्रमा है 12 परिक्रमा के बराबर है। और एक दफे कुछ लोग राइट हैंड से परिक्रमा कर रहे थे, कुछ लेफ्ट हैंड से कर रहे थे। तो एक को चाइनीज इंटरप्रेटर के थ्रू मैंने उससे बात करी। उसने कहा मैं ये 12वीं दफे परिक्रमा करूंगा। और वो फटे हाल, उसके पास पैसे भी शायद उतने नहीं थे। तो उसने कहा कि जो गाइड ने मुझे बताया कि इसको कोई तिब्बतन्स कोई पैसे वाले ने इसको सपोर्ट किया है, तो ये उसके बिहाफ में परिक्रमा कर रहा, पुण्य उसको मिलेगा। और तिब्बतन से मैं कहता हूँ, मैंने पोटाला पूरा आधा दिन लगाया, मिसेज और हमने उसके अंदर गए और जो उनका कक्ष है आपका दलाई लामा का, वहाँ हमने बहुत समय बिताया। और जो वहाँ के वाइब्रेशंस हैं वो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता हूँ। और मैं चाहता हूं कि कभी आपके बीच में मैं स्लाइड शो करूं और आप लोगों का दीदार करूं। और दूसरा, मैंने पूरी परिक्रमा भी उसकी की, पोटाला की, बड़ी बड़ी अच्छी परिक्रमा होती है। और मुझे कई तिब्बतन्स मिले, कई आपने वहां का नाम लिया जहां दलाई लामा आजकल धर्मशाला का, तो वहां के भी एक ओल्ड सज्जन मिले, वो परिक्रमा कर रहे थे और वो जपते हुए जा रहे थे। तो मुझे देखा, रुके, तो हिंदी में बात करी। तो मैं पहले वहीं था और अपने अंतिम उसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। और ऐसी एक यंग लड़की मिली, तो हम उसकी फोटो खींचने लगे। मैंने कहा बैठ, वो कुछ बेच रही थी, तो इनको वो फ्री में देने लगी। मैं आपसे पैसे नहीं लूंगी, यू हैव ए ग्रेट रिगार्ड विद इंडिया। तो मैंने उनसे कहा कि पैसे तो आपको लेने पड़ेंगे। उतने में 4-5 लड़कियां और आ गई यंग। तो मैंने कहा आप खड़े हुई है, मैं आपकी फोटो। उतने में चाइनीज का कोई सीआईडी आ गया और मुझसे कहने लगा क्या बात कर रहे हो उनसे। तो वो सब कोई इधर भागा, कोई इधर भागा। तो इतनी निगरानी। और पोटाला के पास स्टेन गन लेके वो पेट्रोलिंग करते थे। हमसे किसी को बात, हालांकि चाइनीज गाइड था, मेरा सन इन लॉ वहाँ था, उसकी वजह से हमें परमिशन मिल गई। गाछ से मोनेस्ट्री भी मैंने देखी जहाँ आपकी ट्रेनिंग वगैरह होती थी। तो लकीली मुझे 4-5 दफे जाने का मौका मिला। और कैलाश मानसरोवर तो ऐसी जगह है, अगर आपको मौका लगे आपने जरूर जाना चाहिए। और वहाँ के जो वाइब्रेशंस हैं, वो लोग कहते थे ना कि आप इतने माउंटेन्स में जाते हैं, इतने आप नंदा देवी गए, यहाँ गए। तो मैंने कहा दुनिया में 2 जगह हैं, एक हमारा कैलाश मानसरोवर है, एक नंदा देवी है। वहाँ के जो वाइब्रेशंस हैं बिल्कुल डिफरेंट है, वो आप फील कर सकते हैं। हम तो लेमैन हैं, हम पूजा पाठ करते हैं जी। थैंक यू। सो कॉल्ड चाइना मैं 5-6 दफे गया और मुझे वहां से बहुत प्यार है। मैं 90 में डॉक्टर शेखर पाठक के संग कैलाश मानसरोवर गया हमारे रूट से। तब 5-6 दिन की ट्रैकिंग होती थी और उसी दौरान मैंने ओम पर्वत का फोटो खींचा जो कि काफी फेमस हो गया। और उसके अलावा 2022 में मैं गया। फॉर्चुनेटली दोनों समय हॉर्स ईयर था, घोड़ा वर्ष था। तो तिब्बतन्स ने बताया कि ये आपकी जो परिक्रमा है 12 परिक्रमा के बराबर है। और एक दफे कुछ लोग
राइट हैंड से परिक्रमा कर रहे थे, कुछ लेफ्ट हैंड से कर रहे थे। तो एक को चाइनीज इंटरप्रेटर के थ्रू मैंने उससे बात करी। उसने कहा मैं ये 12वीं दफे परिक्रमा करूंगा, और वो फटे हाल, उसके पास पैसे भी शायद उतने नहीं थे। तो उसने कहा कि जो गाइड ने मुझे बताया कि इसको कोई तिब्बतन्स, कोई पैसे वाले ने इसको सपोर्ट किया है, तो ये उसके बिहाफ में परिक्रमा कर रहा, पुण्य उसको मिलेगा। और तिब्बतन से मैं कहता हूँ, मैंने पोटाला पूरा आधा दिन लगाया, मिसेज और हमने उसके अंदर गए, और जो उनका कक्ष है आपका दलाई लामा का, वहाँ हमने बहुत समय बिताया। और जो वहाँ के वाइब्रेशंस हैं वो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि कभी आपके बीच में मैं स्लाइड शो करूँ और आप वहाँ का दीदार करूँ। और दूसरा, मैंने पूरी परिक्रमा भी उसकी की, पोटाला की, बड़ी बड़ी अच्छी परिक्रमा होती है। और मुझे कई तिब्बतन्स मिले, कई आपने वहाँ का नाम लिया जहाँ दलाई लामा आजकल रहते हैं, धर्मशाला का, तो वहाँ के भी एक ओल्ड सज्जन मिले, परिक्रमा कर रहे थे, और नमन वो जपते हुए जा रहे थे। तो मुझे देखा, रुके, तो हिंदी में बात करी। तो मैं पहले वहीं था, और अपने अंतिम उसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। और ऐसी एक यंग लड़की मिली, तो हम उसकी फोटो खींचने लगे। मैंने कहा बैठ, वो कुछ बेच रही थी, तो इनको वो फ्री में देने लगी। मैं आपसे पैसे नहीं लूंगी, वी हैव ए ग्रेट रिगार्ड विद इंडिया। तो मैंने उनसे कहा कि पैसे तो आपको लेने पड़ेंगे। उतने में 4-5 लड़कियां और आ गई यंग। तो मैंने कहा आप खड़े हुई मैं आपकी फोटो। उतने में चाइनीज का कोई सीआईडी आ गया और मुझसे कहने लगा क्या बात कर रहे हो उनसे। तो वो सब कोई इधर भागा, कोई इधर भागा। तो इतनी निगरानी। और पोटाला के पास स्टेन गन लेके वो पेट्रोलिंग करते थे। हमसे किसी को बात, हालांकि चाइनीज गाइड था, मेरा सन इन लॉ वहाँ था, उसकी वजह से हमें परमिशन मिल गई। गाछ से मोनेस्ट्री भी मैंने देखी जहाँ आपकी ट्रेनिंग वगैरह होती थी। तो लकीली मुझे 4-5 दफे जाने का मौका मिला। और कैलाश मानसरोवर तो ऐसी जगह है, अगर आपको मौका लगे आपने जरूर जाना चाहिए। और वहाँ के जो वाइब्रेशंस हैं, वो लोग कहते थे ना कि आप इतने माउंटेन्स में जाते हैं, इतने आप नंदा देवी गए, यहाँ गए। तो मैंने कहा दुनिया में 2 जगह हैं, एक हमारा कैलाश मानसरोवर है, एक नंदा देवी है। वहाँ के जो वाइब्रेशंस हैं बिल्कुल डिफरेंट है, वो आप फील कर सकते हैं। हम तो लेमैन हैं, हम पूजा पाठ करते हैं। जी थैंक यू। नहीं, मैं थोड़ा बताना चाह रहा था कि वहाँ का आप लोगों को शेयर करना चाह रहा था अपना एक्सपीरियंस। थैंक यू। हाँ, बरसों पहले मैं तिब्बत गया था, लेकिन मैं वहाँ घूमने नहीं गया, मैं वहाँ मरने गया था। ग्रेजुएशन के बाद मैं तिब्बत गया और मेरा मकसद वहाँ जाके चीन को लड़ना था। और मैं तब ऐसा सरभिरा था कि अकेले गया और अकेले चीन से लड़ने गया। लद्दाख की बॉर्डर पैदल क्रॉस करके गया और 5 दिन के बाद मेरे को पकड़े गए और आंखों पे पट्टी बांधा, मारपीट किया, जेल में डाला। जेल में 3 महीना, वो भी लद्दाख तिब्बत के बॉर्डर ने लासा की जेल में 3 महीना लगातार वहां रहने के बाद उन्होंने फिर लद्दाख से धकेल दिया वापस। तब से मैं संघर्ष कर रहा हूं अपने देश की आजादी के लिए। आज की तिब्बत की परिस्थिति ऐसा है कि इट्स मोर लाइक अ पुलिस स्टेट। जिस तरीके से अनूप शाह जी ने अभी बहुत खूबियों से अपने एक्सपीरियंस के वहां से बताया कि तिब्बत एंटायरली इज अंडर चाइनीज ऑक्यूपेशन। और तिब्बत जो वो छोटा देश नहीं है, ये 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया है। भारत की तुलना से 2/3 ऑफ इंडिया इज 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, तिब्बत इज 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर। उतनी बड़ा देश है और ये पूरी की पूरी चाइनीज की कब्जे में है। नॉट ओनली तिब्बत बट ईस्ट तुर्किस्तान, सदर्न मंगोलिया, मंचूरिया, ऐसे करके 60% ऑफ चाइनीज लैंड मास इज ऑक्यूपाइड कंट्री। और ये हमें जरूर वो इंडिया शुड क्वेश्चन China's 60% of occupied land, because China keeps on saying Arunachal is theirs, China keeps on saying Ladakh is theirs. But what about the 60% of China's landmass which is occupied country?
We must continue to raise this. So with this, I conclude my reading and presentation here. Thank you everybody. It's more of a personal confession or a political statement? Thank you. When you read poetry, there is no two ways about it. There are millions of other ways of looking at it. But as an interpreter, as an audience and a reader, one can always look at this from certain perspective. You could call it personal statement, which is in a way my personal statement. But we are all political people. However artists you may be, your art is also political in the way what you say and what you withhold and not say, what you leave it unsaid and yet still there. These are political ways with which artists often engage in. You could say it. But for me, my political arguments come in my essays. जब मैं तिब्बत के लिए झगड़ा करना हूं, तो मैं 3 दिन लगातार बैठ के मैं अच्छा सा ऐसे आर्टिकल लिख देता हूं हिंदुस्तान टाइम्स के लिए, टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए। वहां मैं अपनी राय रखता हूं। जो दृष्टिकोण इंडियन राइटर्स और फॉरेन राइटर्स के बीच में तिब्बत के बारे में नहीं है, तिब्बत के सोच जो है वो मैं रखता हूं। But when I write poetry, then it's a little different. I do not enforce my poetry in the way I do in essays. Poetry takes years, sometimes even more than 12 years for me to completely form and then arraign in my head this poem that I read, When It Rains in Dharamshala. This was a thought and an experience that was with me for many years. And one day when my house was in Dharamshala, our rented room was completely inundated with water, that was the spark. Then everything came together. So the process of writing is quite different when you make a political statement in essays or when you come out with such a natural feel when you write poetry. These are different experiences people undergo. Thank you. And I think all of us feel energized. Yes, do we feel energized after that amazing conversation? Thank you. Wondered what happens when an IAS veteran turns to verse? Meet Indu Kumar Pandeyji, a physicist, former Chief Secretary of Uttarakhand, and also the author of Divija, whose poems weave philosophy into everyday life. And joining him is Richa Rudra, an MBA-educated HR leader, an independent director, now channeling 2 decades of strategic insight into hand-painted garments and a forthcoming book on success strategies. I would like to welcome you both on the stage to start the session, Kavita Ki Boli. As we prepare, I would like to take this moment to thank Anirudh Gupta, Samir Sandhir, Vikram Saraf. Thank you so much for supporting this festival. How the masters of Tibet guided the foundation of the International Congress and the Indian Freedom Struggle. Vipin Chandra. Hello, very well said and beautiful. You're coming, you will let me know. You're coming today or tomorrow. Whenever you is welcome. है ना? अभी जाना जरा फोटो मेरा थोड़ी पसड़ हो गई है। अरे आओ। क्या करना है? शुरुआत होगा। कल इसको फिर ना कल नमस्कार। देवभूमि की इस सुगंधित में बसी नैनीताल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। I welcome you all in this delightful city of Nainital.
मेरा नाम ऋचा रुद्रा है और साहित्य की पावन बेला में हम एकत्रित हुए हैं कविता की उस आत्मा को सुनने जो शब्दों से परे दिलों को छू जाती है। यह सत्र समर्पित है इनको हाथ देंगे भी शुरू किया, लेकिन उर्दू एक ऐसी जुबान है, अगर आपको एक बार चस्का लग जाए तो आप आसानी से उसको छोड़ नहीं सकते। तो अभी भी इक्का दुक्का कविताएं मैं उर्दू में लिखता हूँ। फिर कुछ मेरे दोस्त थे जिन्होंने कहा साहब हमको हिंदी उर्दू में बड़ी कठिनाई होती है पढ़ने में, तो कुछ कविताओं का मैंने अनुवाद किया अंग्रेजी में। अंग्रेजी में कोई ओरिजिनल पोएम्स नहीं है, वो केवल अनुवाद है हिंदी और उर्दू की कविताओं। जी जी, इनफैक्ट मैंने आपकी जो उर्दू की कविता अब दो सो दे आर इक्वली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो आप कह रहे हैं कि उर्दू आपको इतनी आपकी रमा नहीं